سارا، کہاں ہو تم یار؟ میں کب سے تمہارے ریسٹورنٹ میں انتظار کر رہا ہوں اور تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا کرتی ہو تم؟ تم نے مجھے 12 بجے کا وقت دیا تھا اور میں 11:30 بجے ہی وہاں پہ پہنچ گیا تھا۔ اب ذرا دیکھو، 1 بجنے والا ہے۔ میں بے انتہا غصے میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا سارا سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ یار میں کیا کروں؟ امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں انہی کی دیکھ بھال میں ہلکان ہو گئی۔ بس تھوڑی دیر میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ جب سارا نے کہا تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی گھر سے نکلی ہی نہیں تھی۔ یار، میں تمہاری وجہ سے آج آفس کا سارا کام چھوڑ کے آیا ہوں اور تم مجھے یہ بتا رہی ہو کہ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم آج کا پلان ہی نہیں بتاتے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ مجھے غصہ آنے لگا، حالانکہ وہ میری محبت تھی، لیکن آج مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ آج میں نے اپنے سر سے بڑی مشکلوں سے چھٹی لی، اور وہ بھی صرف اس بات پہ کہ کل میں ایکسٹرا ٹائم لگاؤں گا، اور آج سارا میرے ساتھ یہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہیں پہ بیٹھا غصے سے جھنجھلاتا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں تو میں نے دوبارہ سے اسے کال ملا دی۔ سارا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس وقت ذرا میں غصے میں تھا۔ میں یہیں پہ ہوں، اگر تم آ سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم کل کا پلان بنا لیں گے یا پھر کسی اور دن کا، میں نے کہا تو اس کی رندی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ آنے لگی تھی، لیکن اب اس کی امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ انہیں ہسپتال لے کے جا رہی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ سارا، تم پریشان نہ ہو، تم بتاؤ تم کس ہسپتال جا رہی ہو، میں ابھی وہاں پہ پہنچتا ہوں۔ ویسے بھی میں نے چھٹی تو کر لی ہے، اب میں فارغ ہوں۔ میں نے کہا تو اس نے مجھے ہسپتال کا پتہ دیا۔ ابھی خود بھی ہسپتال نہیں پہنچی تھی۔ میں نے ہسپتال کا پتہ نوٹ کیا اور اسی وقت ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا اور اپنی سزوکی کار میں بیٹھ کے سٹی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے ریسٹورنٹ سے ہسپتال جانے میں تقریباً 15 منٹ لگ گئے۔ وہاں پہ پہنچا تو سارا وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور کوریڈور میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ سارا، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جانتا تھا کہ آنٹی شوگر کی مریضہ ہیں، اس لیے میں سارا کو تسلی دینے لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے میرے کندھے پہ سر رکھا تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ بھلے ہی ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے درمیان ایک لمٹس تھیں اور میں نے آج تک وہ لمٹس کراس نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ان کی شوگر اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ انہیں اسے ہسپتال لانا پڑا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں اسے سمجھا رہا تھا مگر وہ میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ میں 15-20 منٹ وہیں پہ کھڑا رہا۔ کوئی بھی ڈاکٹر ہمیں کوئی اطلاع دینے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے اسے بینچ پہ بٹھا دیا۔ وہ بہت ہی شریف لڑکی تھی اور کچھ دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بہت جلد ہی اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک سارا ہی مجھے روک رہی تھی کہ ہم نے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا آخری سال چل رہا تھا اور وہ چاہ رہی تھی کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے۔ اسی لیے میں خاموش تھا۔ مجھے صرف اور صرف سارا چاہیے تھی۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ کچھ دیر ہم وہیں بیٹھے رہے۔ 15-20 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور ایک دل دہلا دینے والی خبر بھی اپنے ساتھ ہی لائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور انہیں دوسرے شہر لے جانا ہوگا۔ یہ سن کے تو سارا مزید رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہو، میں آفس سے چھٹی لے لوں گا اور اس کے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور اس کے بابا بھی آج سے 2-3 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ساری ذمہ داری اس پہ ہی تھی۔ وہ فرسٹ ٹائم کالج جاتی اور سیکنڈ ٹائم ایک آفس میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی، جس سے ماں بیٹی کا گزارا چل رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شریف اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1-2 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہمیں آنٹی کو یہاں سے لے جانا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میری گاڑی ہے، ہمیں گاڑی بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ گیلی آواز کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مبشر، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تو اسے کچھ آرام آ گیا۔ پھر ہم آنٹی کو لے کے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں پہ اتنی سہولیات نہیں تھیں، اسی لیے ہی ڈاکٹر نے ہمیں لاہور بھیجا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم لاہور پہنچے۔ آنٹی کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک بات میں نے سارا سے چھپا لی تھی جو ڈاکٹر نے مجھے علیحدگی میں کہا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ آج ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں آئی تو پھر ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے سارا سے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ رو رو کے اپنا برا حال کر دے۔ ماں کی طبیعت دیکھ کے وہ ویسے ہی پریشان تھی۔ اگر میں اسے یہ بات بتاتا تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی اور میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی اور میرے دل کے اتنے قریب تھی کہ اس کا درد مجھے اپنا درد محسوس ہوتا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کے میری بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور اسے مسکراتا دیکھ کے میں بھی بلا وجہ مسکرانے لگتا۔ اس میں میری دنیا بستی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آنٹی کو لاہور کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ سارا پھر سے آنسو بہانے لگی۔ کبھی کبھی وہ میری بات سن کے خاموش ہو جاتی اور جب اس کی ہمت جواب دیتی تو وہ پھر سے بچوں کی طرح رونے لگتی۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آ رہا تھا۔ میری بھری پوری فیملی تھی، بھائی تھے، بہنیں تھیں، امی ابو بھی تھے، لیکن وہ بیچاری اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی اتنے بڑے شہر میں رہتی تھی۔ میں اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ سارا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کے کہیں بھی کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ دیکھنا، آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ گھر واپس جائیں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پہلی مرتبہ ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا اور پھر بہت جلد چھوڑ بھی دیا۔ ہمیں شام سے رات ہو گئی اور پھر رات سے صبح بھی ہو گئی۔ ہم دونوں کوریڈور میں بیٹھے آنٹی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ صبح ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری دی کہ اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ خوشی کی خبر سنائی تو میں تو بہت خوش ہو گیا، لیکن سارا مجھ سے بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ اب اس کی ماں خطرے سے باہر تھی اور یہ بات اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے خوشی میں ہی مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس نے مجھے پہلی مرتبہ گلے سے لگایا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی مجھے کرنٹ سا لگا اور میں نے اسے خود سے آزاد کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بھی 2-3 دن آنٹی کو یہیں پہ رہنا ہوگا۔ میں نے اپنے آفس میل کر دی کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ میں اپنی محبوبہ کا ساتھ یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی اس سے وفادار رہوں گا۔ یہ بات الگ تھی کہ سارا مجھ پہ ہنستی اور کہتی کہ نہیں، مرد بے وفا ہوتے ہیں، آپ بھی ایک نہ ایک دن بدل جائیں گے۔ اور اب میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا ہوں۔ سارا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہے۔ آنٹی تو کمرے کے اندر تھی اور ہم پورا ہسپتال گھومتے رہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں تھی۔ آنٹی اب بالکل ٹھیک تھیں، بس احتیاط کے طور پہ ہی انہیں 2-3 دن ہسپتال میں رہنا تھا۔ سارا تو کہہ رہی تھی کہ ہم انہیں اپنے شہر واپس لے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر خرچہ ذرا زیادہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ خرچے کی بالکل بھی فکر نہ کرے۔ میرے پاس پیسے تھے، میں اچھی جاب کرتا تھا، میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور بہت ساری سیونگز بھی میں نے کر رکھی تھی۔ میرے گھر میں میرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھیا اپنی جاب کرتے، ابا کی پینشن آتی، بہنیں بیاہی گئی تھیں، اس لیے کسی کو بھی میرے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور میں اپنی مرضی سے ہی اپنے پیسے خرچتا۔ اور آج میں اپنی محبوبہ کی ماں پہ اپنے پیسے خرچ کر رہا تھا۔ ویسے سارا بھی اپنے ساتھ اچھے خاصے پیسے لائی تھی، لیکن شاید وہ خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے محبت تو بہت کرتی ہے، لیکن انسان اپنی جیب دیکھ کے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس نے آگے بھی پورا مہینہ گزارنا تھا۔ ابھی تو بس مہینے کی شروعات ہی تھی اور اسی وجہ سے اس کے پاس پیسے تھے۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان ماں بیٹی کا گزارا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ہم دونوں ہاسپٹل کے صحن میں ایک بینچ پہ بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ کسی کے چہرے پہ خوشی تھی تو کسی کے چہرے پہ اداسی۔ کسی ایمبولینس میں کوئی مردہ جا رہا تھا تو کسی ایمبولینس میں کوئی نومولود بچہ۔ ہاسپٹل میں بس دنیا تیز تیز چلتی پھرتی محسوس ہوتی، کوئی بھی بے تاثر نہیں تھا۔ کسی کے چہرے پہ خوشی تو کسی کے چہرے پہ غم کی لہر تھی۔ ہاسپٹل ایسی واحد جگہ ہے جہاں پہ انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں اور دکھ بھی ان کو ملتے ہیں جو بیچارے ہماری طرح آئے ہوتے ہیں، اور جن بیچاروں کے اپنے ہسپتالوں کے بستر پہ دم توڑ دیتے ہیں، اور خوشیاں ان کو ملتی ہیں جو یہاں سے اپنے ننھے پھول لے کے جاتے ہیں۔ سارا مجھے ذرا مطمئن اور سکون میں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے اس سے بات کرنے کا۔ سارا، میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ کم ہی بولتی تھی اور جب سے آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ بول ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ مجھے ایک سکون نظر آ گیا، اس لیے اس کا موڈ دیکھ کے ہی میں بات کرنے لگا۔ سارا، بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں منگنی کر لینی چاہیے۔ میرے گھر والے بھی مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ امی ابو چاہ رہے ہیں کہ بھیا اور میری شادی ایک ساتھ ہی کر دیں۔
तुम तो जानती हो कि भैया की मंगनी पिछले 1.5 साल से हो चुकी है और अब उनके ससुराली भी कह रहे हैं कि उनकी शादी हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करूँ, लेकिन अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। मैंने सारा से कहा तो वो गहरी सोच में पड़ गई और अब भी कोई जवाब नहीं दिया। सारा, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें इस बात पे कोई एतराज़ है? मैंने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं मुबश्शिर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं बता सकती जो मैं सोच रही हूँ। मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, इसके बाद ही मैं आपको हाँ कर पाऊंगी। जब सारा ने ये कहा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे मंगनी करने के बारे में भी सोचेगी। ना जाने क्यों मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल उसे दिए और अब वो कह रही थी कि वो सोच के बताएगी। सारा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं तो फिर क्यों तुम मेरे साथ हो? मैं थोड़ा बहुत गुस्से में आ गया और अब गम और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ ही उससे बात कर रहा था। मैंने ये कहा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो बार बार ही मेरा हाथ थाम लेती और मैं हर वक्त ही उससे अपना हाथ छुड़वाता रहता। ना जाने वो किस किस्म की लड़की थी, लेकिन जैसी भी थी मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी। वो बहुत शरीफ थी। मैं जानता था कि वो मेरे साथ ही इतना ज़्यादा फ्री होती है कि मेरा हाथ थाम लेती है। दूसरे लड़कों से तो वो बात करना भी गवारा नहीं करती थी। और एक मर्तबा मैं ये वाक़या भी देख चुका था, जब इत्तेफाकन वो मुझे सड़क पे नजर आई। उस वक्त हमारी मोहब्बत के नए नए दिन थे। मैं एक गाड़ी में जा रहा था और वो सड़क पे खड़ी एक नौजवान से लड़ रही थी और फिर मेरी आंखों के सामने ही उससे उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ सिर्फ इसी वजह से ही लगाया कि वो बिला वजह कब से उसे घूरे जा रहा था। उस दिन वो मुझे बहुत शरीफ और बहादुर लगी और मैंने सोच लिया कि मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी भी अलहदा नहीं करूंगा। उसने मेरा हाथ थामा हुआ था और कह रही थी कि ऐसी बात नहीं है, वो बस अपनी अम्मी की वजह से परेशान है। वो कह रही थी कि मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे कोई और परेशानी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे झूठ बोल रही हो, मगर मैं उससे मुंह पे तो झूठा नहीं कह सकता था। मैंने उससे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले यूं महबूब को रुस्वा नहीं करते। सारी सारी बातें छोड़ो और मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने घर वालों से बात करूं। अब वो मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहते। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा रिश्ता कहीं और कर दें। मैंने धीमी आवाज़ के साथ कहा तो उसने कहा, चले ठीक है, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे बात करूंगी और जैसे वो कहेंगी वैसे कर लेंगे। उससे ये तो कह दिया था, मगर इसके बाद वो इतनी खामोश हो गई जैसे कुछ बोल ही ना रही हो। सारा, तुम्हारे साथ कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तमाम मसाइल हल करने के लिए मौजूद हूँ। मगर तुम यूं उदास और खामोश न हुआ करो, मेरा दिल दहल जाता है। आज मैंने उसका हाथ पकड़ने में पहल की। वो मुस्कुरा रही थी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अब मुझे मंगनी पर कोई एतराज़ नहीं। हम मंगनी कर लेंगे, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। इसके बाद उसकी आवाज़ मुझे गहरी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ पल रहा है, मगर मैं नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही है। हम थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे और फिर वहाँ से उठ के आंटी के पास कमरे में आ गए। वो अब भी सो रही थी। वो हर वक्त ही गश में रहती। शायद डॉक्टर ने उन्हें ऐसी अद्वियात दी थी जिनकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। 3 दिन हम अस्पताल में रहे। 3 दिन तो पर लगा के उड़ गए और फिर जमेरात के दिन हम लाहौर से रवाना हो गए। एक लंबी मुसाफत के बाद मैंने सारा और आंटी को उनके घर पे छोड़ा। आंटी मुझे ढेरों दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि तुम जैसा बेटा अल्लाह ताला हर किसी को दे। जब आंटी ने ये कहा तो मैंने सारा के चेहरे पे देखा। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। हालांकि उसकी माँ मेरी तारीफ कर रही थी। उसे खुश होना चाहिए था, क्योंकि अब उसने हम दोनों की मंगनी की बात करनी थी। लेकिन उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। ना जाने वो क्या सोच रही थी। मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने उससे कोई जिक्र नहीं किया और उन्हें उनके घर छोड़ने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं 3 दिन बाद घर आ रहा था। मैंने पहले ही इतला कर दी थी कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। मैंने अपने घर पे ये नहीं बताया था कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ। मैंने कहा था कि मेरे दोस्त की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उसके साथ उन्हें लाहौर लेके जा रहा हूँ। उन्हें मेरी गाड़ी की ज़रूरत है। वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। भाई अपनी ज़िंदगी में मगन थे और अम्मा अब्बा सारा दिन आपस में बातें करते रहते, घर पे ही बैठे रहते। अब्बा रिटायर्ड थे और सारा दिन घर पे बैठे रहते थे। मैं घर पहुंचा तो शाम हो रही थी और हमारे घर में चाय का दौर चल रहा था।
अम्मी ने मुझे भी चाय पे रोकना चाहा, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि मैं बैठ भी नहीं सकता था। और इतनी लंबी ड्राइव के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी किसी से बातचीत करने की। अम्मी मुझसे मेरे दोस्त की अम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। मैंने उनसे कहा वो बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बाकी की बात बाद में बताऊंगा। और फिर मैं अपने कमरे में आ गया और आते साथ ही बिना नहाए बिस्तर पे दराज हो गया। हालांकि मैं ओसीडी का मरीज था, पर जब भी किसी ऐसी जगह से होके आता तो ज़रूर आके नहाता, लेकिन आज मुझे कोई होश नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैंने सारा का साथ देने के लिए 3 दिन अस्पताल में गुजारे थे। अब मुझ में बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए जूते उतार के फौरन से बिस्तर पे दराज हो गया और बहुत जल्द ही मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि सब घर वाले सो चुके होंगे। अब जो भी करना था मुझे खुद ही करना था। मैं उठा और बाथरूम में घुस गया। मुझे ख्याल आया कि मुझे नहा लेना चाहिए। ना जाने अस्पताल में मैं कहाँ कहाँ बैठा रहता था, और वो भी इतने सारे जरासीमों में। जब मैं नहा के बाहर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। फिर इसके बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गया। हमारा घर बहुत बड़ा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, और वो थी मेरी मोहब्बत, जो अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरी होने वाली थी। मैं किचन में गया और फ्रिज खोल के खड़ा हो गया। वहाँ से मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स निकाले और उन्हें ओवन में रख दिया। खाना ओवन में गर्म हो रहा था और मैं स्लेब के साथ टेक लगाए अपनी जान के बारे में सोच रहा था। सारा मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज थी। आज भी मुझे वो बात नहीं भूली जिस दिन मैंने उसे पहली मर्तबा देखा। मैं पहली नज़र में ही उस पर फिदा हो गया था। लोग कहते हैं कि पहली नज़र का प्यार कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा पहली नज़र का प्यार इतना मजबूत था कि इसके बाद मैंने सारा को भी अपना बना लिया। मैं स्लेब के साथ टेक लगाए उस वक्त के बारे में सोचने लगा जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था। मैं ऑफिस से बाहर निकला। इससे पहले कि मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचता, एक हसीन और जमील लड़की से मेरा टकराव हुआ। मैंने सर ऊपर उठा के देखा तो वो लड़की अपना माथा मसल रही थी। अंधे हो, नजर नहीं आता क्या सामने से एक लड़की चलती हुई आ रही है? मगर नहीं, तुम जैसे लड़कों को तो मौका चाहिए होता है लड़कियों से टकराने का। दफा हो मेरी आंखों के सामने से। सारा बेइंतहा गुस्से में मुझ पे चिल्लाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। काले बाल कमर को छू रहे थे। मेहरून रंग की शलवार कमीज में वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके नाजुक हाथ जिन्हें हिला हिला के वो मुझे बातें सुना रही थी, मैं तो बस उन्हें ही देखते जा रहा था। मुझे कोई होश नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको देखा ही नहीं। अगर आपको तकलीफ हुई तो मैं माजरत करता हूँ। मैंने सारा की आंखों में आंखें डाल के जब ये कहा तो वो मजीद गुस्से में आ गई। अब आगे से एक्सक्यूज पेश करते हो? अंधे हो क्या, नजर नहीं आया? अब हटो मेरे सामने से। वो ये कहती हुई वहां से जाने लगी और मैं उसे तकता रह गया। दोपहर का वक्त था। मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था और वो शायद अपने कॉलेज से बाहर निकली थी। ऑफिस के बिल्कुल सामने ही गर्ल्स कॉलेज था और सारी लड़कियां ही कलर कपड़ों में थी। मैं समझ गया कि आज कॉलेज में कोई पार्टी है। अब मुझे कल का इंतजार था कि कब मुझे उसका दीदार होगा। अगले रोज भी मेरी खुशकिस्मती के मुझे उसका दीदार हो गया। छुट्टी का वक्त था। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म में कॉलेज से बाहर निकल रही थी और मैं उसे दूर से ही देख रहा था। उसने भी मुझे देखा और फौरन से आंखें दूसरी तरफ फेर ली और अपनी दोस्त से कुछ कहने लगी। ना जाने वो क्या कह रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रही है। 2-3 दिन मैं उसे दूर दूर से ही देखता रहा। पहली नज़र में ही वो मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैं उसे देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता था। मुझे तो सारा दिन कॉलेज की छुट्टी होने का इंतज़ार रहता। मेरी भी छुट्टी उसी वक्त ही हो जाती थी और मैं उसके बाहर निकलने के इंतज़ार में घर जाने से लेट हो जाता था। आज मुझे उसे देखते हुए पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। मैंने सोचा कि आज उससे बात करूंगा। मैंने आज गाड़ी उसके कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी कर दी। जैसे ही वो अपनी दोस्त के साथ बाहर निकली तो कॉलेज का एक गुंडे नुमा लड़का उससे जानबूझ के ही टकरा गया। मैं देख सकता था कि उसने पीछे से जानबूझ के ही उसे धिक्का दिया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं उसी वक्त ही गाड़ी से उतरा और उस लड़के का हशर कर दिया, जो शक्ल से ही किसी बदतहजीब घर आने का लगता था। सारा दूर खड़ी थी मगर गुस्से भरी निगाहों से उस लड़के को और मुझे देख रही थी। मैंने उसका बदला ले लिया।
मैंने उसका बदला लिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दे के जब थैंक यू कहा तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैंने बस इतना ही कहा कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपनी ज़िंदगी के वो साल आपके साथ गुज़ारने हैं, जितने साल मैं इस दुनिया में हूँ। जब मैंने अपनी मोहब्बत का इज़हार घुमाने-फिराने वाले अंदाज़ में किया, तो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। उसकी दोस्त उसके साथ थी इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पाई और वहाँ से चली गई और मैं उसे देखता रह गया। वो चली गई थी और मैं उसकी पीठ तक रहा था। जब वो मेरी आँखों से ओझल हो गई, तो मैं भी गाड़ी में आके बैठ गया और फिर मेरा उसे देखना रोज़ का मामूल बनता गया। 1 महीना मैं उसे दूर-दूर से ही देखता रहा। पहले वो मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद अब वो मुझे देख के मुस्कुरा देती थी और एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे बात कर ही ली। तो उसने कहा कि पहले वो मुझे समझेगी, परखेगी, इसके बाद ही कोई जवाब देगी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हम दोनों बाहर मिलने लगे और फिर नतीजा ये निकला कि उसने कहा कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। हम दोनों की मोहब्बत की दास्तान चल निकली थी, जो मुझे आज तक नहीं भूली थी। मैं स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ा था और आंखें बंद करके खूबसूरत माजी को सोच रहा था। मैंने आंखें उस वक्त खोली जब मुझे जलने की बू आई। मैंने ओवन से धुआं उठता देखा तो जल्दी जल्दी स्विच ऑफ कर दिया। मैंने खाना निकाला तो खाना जलते जलते बच गया। बस खाने की बू किचन में फैल गई थी। मैंने मज़े से चिकन बिरयानी खाई और खाने के दौरान भी मैं अपनी महबूबा को ही सोचता रहा, लेकिन अब वो मुझे कुछ पुरस्रार सी लगने लगी। वो कोई बात ढंग से नहीं करती थी, ज़्यादातर खामोश ही रहती और जब बात करती तो मुझे उसकी बातों से यही लगता कि जैसे वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं है या अभी भी उसे मुझ पे एतबार नहीं है। शुरू-शुरू में वो कहती थी कि लड़के बेवफ़ा होते हैं, मैं इसे किसी पे एतबार नहीं कर सकती। फिर उसने मोहब्बत की हामी भी भर ली, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि जैसे अब भी उसे मुझ पे यकीन ना हो। खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पे दराज़ हो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो 11 बजे देख के मैं हैरान रह गया। मैं इतनी देर कैसे सोता रहा? शायद 3-4 दिन की थकावट थी जो आज उतर चुकी थी। आज वैसे भी संडे का दिन था। मैंने कल से ऑफ़िस जाना था। मैंने पिछले 3-4 माह से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं की थीं। इसलिए मेरे ऑफ़िस में मेरी छुट्टियाँ जमा हो चुकी थीं, जो मैं 1 हफ़्ते में ही ख़त्म कर चुका था। आज भी सारा दिन मैं घर पे रहा। दोपहर का वक़्त था जब सारा की कॉल आई कि उसकी अम्मी मंगनी के लिए राज़ी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे ये नहीं कहा कि वो भी राज़ी है, बस उससे यही कहा कि उसकी अम्मी राज़ी हैं, तो मैंने भी गड़े-मुर्दे ना उखाड़े। मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और शायद लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, जब वो किसी नए शख़्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करती हैं तो उसे परखती ज़रूर है। वो इतना अरसा मुझे परख चुकी थी लेकिन अब भी शायद मुतमईन नहीं थी। मैंने सोचा कि मंगनी के बाद मैं उससे मज़ीद मोहब्बत जताऊँगा तो उसे मेरी मोहब्बत का यकीन आ ही जाएगा। मैं अपने कमरे में बैठा उससे बात कर रहा था और फिर बात करने के बाद मैं नीचे आ गया। भैया ऑफ़िस से आ चुके थे। अम्मी-अब्बू तो वैसे भी घर में रहते। वो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। मैंने आते साथ ही ऐलान कर दिया कि मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तो भैया हँसने लगे और कहने लगे कि वज़ीर आज़म साहब बताइए क्या बात है? वो मुझे हर वक़्त ऐसे ही छेड़ते रहते। मैं उनका बड़ा लाडला था और घर में मेरी हर बात मानी जाती थी। इसीलिए तो आज तक मैंने अम्मी-अब्बू को अपने ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करने दी थी। अगर उनका बस चलता तो कब से मेरी मंगनी कर चुके होते। सब लोग सुन लें। बात ये है कि मुझे एक लड़की पसंद है और अब हमें जुमे के दिन वहाँ पे मंगनी करने के लिए जाना है। जैसे ही मैंने ये कहा तो अम्मी-अब्बू और भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। बेटा, लड़की कौन है, कहाँ से है, किस ख़ानदान से है, ये तो देखना पड़ता है ना। जब अम्मी ने ये बात की तो मैंने उन्हें ख़ामोश रहने का इशारा कर दिया। अम्मी, वो जैसी भी है, मुझे पसंद है। मैं नहीं चाहता कि आप उसके ख़ानदान को लेके कीड़े निकालें। बस आप सब लोगों को जुमे के दिन वहाँ पे चलना है और हमारी मंगनी में शरीक होना है। मैंने ये कहा तो भैया मुस्कुराने लगे। वो मुझे छेड़ रहे थे। वो अब्बा से कह रहे थे कि जब इसने सब कुछ खुद ही तय कर लिया है, तो हम क्या ही कर सकते हैं? करने दें इसे अपनी मनमानियाँ। वो दाँत निकालते हुए कह रहे थे। मैं जानता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे तंग कर रहे हैं, इसलिए ही उनकी बातों में ना आया और वहाँ से निकल गया। इतवार का दिन था। हमारी मंगनी में 4 दिन रह गए थे। हालाँकि सारा ने मुझे जुम्मे का नहीं कहा था। बस उसने यही कहा था कि जब भी मेरा दिल चाहे, मेरा दिल तो चाहता था कि मैं आज ही कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जुम्मे के बाबरकत दिन ही एक नए रिश्ते में बंधा जाए।
वक्त गुजरता जा रहा था। मैं भी ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और आखिरकार जुम्मे का दिन भी आ गया। अम्मी ने सुबह ही सारा के घर बहुत ज़्यादा सामान और मंगनी का जोड़ा भिजवा दिया। हम दोपहर को जुम्मे के बाद पहुँचे। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर के ड्रेस में वो मुझे पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि आज ही निकाह करवा लूं। वो मुझे कुछ खोई खोई सी लग रही थी। लग रहा था जैसे वो खुश ना हो या उसके साथ कोई और मसला हो। मैंने सोचा कि सब घर वालों के सामने ऐसी ही कोई बात नहीं करता। ये ना हो कि वो बेचारी नर्वस हो जाए। घर जाके मोबाइल पे ही उससे बात कर लूँगा। उसकी अम्मी ने ख़राब तबीयत के बावजूद भी हमारे खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और फिर असर के बाद हम उनके घर से वापस आ गए। मैंने आते साथ ही सारा को कॉल लगा दी, मगर वो मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब तो हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, तो ना जाने उसे क्या मसला था। मैं सारा दिन उसकी कॉल का इंतज़ार करता रहा। दिन गुज़र गया, रात गुज़र गई, अगला दिन भी आ गया। मैंने सुबह सवेरे अपना मोबाइल चेक किया तो उसकी कोई कॉल नहीं आई हुई थी। बस एक मैसेज आया था कि वो मुझसे मिलना चाहती है और ये बहुत ज़रूरी बात थी। मैंने भी उसे मैसेज कर दिया कि यार मैं तो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों का प्लान बना लेते हैं। मैंने उसके व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा तो वो ऑफ़लाइन थी। मैसेज करने के बाद मैं बाथरूम में घुस गया। मैं नहा धो के बाहर आया, तैयार होने के बाद नीचे आ गया, नाश्ता वग़ैरह किया और फिर ऑफ़िस पहुँच गया। आज और कल मैंने ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहना था और पहले भी मैं इतनी छुट्टियाँ कर चुका था कि अब छुट्टी की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। मैं ऑफ़िस में पहुंचा तो उसकी कॉल आने लगी। मुबश्शिर, पहले आपने मुझे इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए, मैं इस वक्त घर में मसरूफ़ थी, इसलिए मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाई और अब आप मुझसे बदला ले रहे हैं। जब उसने ये कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैं वाकई में बिज़ी था। सारा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं वाकई में बिज़ी हूँ। प्लीज़, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैसे तो कल भी मैंने मसरूफ़ होना है, लेकिन अगर तुम कल कहती हो तो हम कल मिल लेते हैं, लेकिन वो भी शाम में। मैंने कहा तो उसने कहा नहीं, उसे मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है, उसे मेरा कोई टेस्ट लेना है, इसके बाद ही वो मुझसे शादी करेगी। जब उसने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई। मैं समझ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैं जानता था कि वो तरह-तरह की बातें पूछेगी कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं उसे खुश रखूँगा भी या नहीं, मैं अपने माँ-बाप और अपनी बीवी को कितनी-कितनी अहमियत और दर्जा दूँगा। वो हर वक्त ऐसी बातें करती। आज भी मैंने अपनी तरफ से यही सोच लिया था कि अब भी उसे इसी तरह से बातचीत करनी होगी। मैंने उससे कह दिया कि चलो ठीक है, हम सोमवार के दिन मिलेंगे और मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने ये कह के कॉल कट कर दी। आज हफ्ते का दिन था, कल इतवार का दिन था। वैसे तो आम रूटीन में हमारे ऑफिस में इतवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो इतवार के दिन ही ख़त्म होने थे। इसीलिए ही हमारे मैनेजर और बॉस ने कहा कि हमें इतवार के दिन भी आना होगा और अगर कोई मंडे को छुट्टी करना चाहे तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। मैंने सोचा कि मैं मंडे की छुट्टी सारा के साथ गुजारूंगा और उसके सारे खदशात दूर कर दूंगा। मैं नहीं जानता था कि वो किस बारे में बात कर रही है। अगर मैं उस वक़्त जानता होता तो उसे सबसे रोक देता। आज का दिन मैं बड़ा मसरूफ़ रहा। कल का दिन भी बड़ी मसरूफ़ियत में गुज़रा। अगली सुबह सवेरे ही उसका मैसेज आया हुआ था। सोमवार का दिन था और वो मुझे अपना वादा याद दिला रही थी। मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया बल्कि डायरेक्ट कॉल कर दी, तो उसे बड़ी जल्दी उठा ली। जाने मन, आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूँगा और 12 बजे ही हम उस पार्क में मिलेंगे जिसमें हम सबसे पहले मिले थे। मैंने कहा तो दूसरी तरफ से खामोशी ही रही। सारा, तुम सुन रही हो? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? मैंने सवालिया लहजे में कहा तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मेरा गला ख़राब है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही। ठीक है, मैं 12 बजे उसी पार्क में आ जाऊँगी। आप भी वक्त से आ जाइएगा। हमारी मंगनी हो चुकी थी और अब मैं खुल्लम खुल्ला उससे मिलने के लिए जा सकता था। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आज मैं अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हल्की सी थपकी लगा दी। मैंने उनसे झूठ बोला, मेरी तो ना जाने कितनी डेटें हो चुकी थी। मैंने नाश्ता किया और इसके बाद अपने कमरे में आ गया। मैं अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा आज मैं सारा दिन सारा के साथ गुजारूंगा और उसके सारे खदशात दूर करूंगा और उससे ये भी कहूँगा कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही 12 बजे तो मैंने अपनी गाड़ी में सवार होके उस सफ़र की तरफ रवाना हो गया, जिस मंजिल पे पहुँचने का मुझे बड़ा इंतज़ार था। मंगनी के बाद से मैंने उसे नहीं देखा था।
हमारी बस फ़ोन पे ही बात होती रही थी। हालाँकि मंगनी को भी 2 दिन गुज़रे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कब से देखा ही नहीं। और फिर एक लंबी मुसाफ़त के बाद मैं उस पार्क में पहुँच गया जहाँ पे हम पहली मर्तबा मिले थे। वो पार्क हमारे घर से बहुत दूर था। मैं पार्क के अंदर पहुँचा तो वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी। उसे देखकर मेरे दिल में लगी आग ठंडी हो गई। मोहब्बत की आग उसे देख के हर वक़्त ही बुझ सी जाती थी। जब मैं उसके करीब जाता तो वो और भड़कने लगती, जो अब फिर से भड़कने लगी थी। इसलिए मैं चाह रहा था कि हम किसी गलत काम में पड़ने के बजाय जल्द से जल्द शादी करें। मैं ज़्यादा अरसा मंगनी को रखना नहीं चाहता था। मैं उससे मोहब्बत करता था और जल्द से जल्द उसे हासिल करना चाहता था। मैं जब उसके पास गया तो उसने सिर्फ़ मेरे सलाम का जवाब दिया। इसके बाद खामोश होके बैठ गई। वो एक बेंच पे बैठी थी। मैं भी उसके साथ ही बैठ गया। सारा, क्या हुआ है? कुछ दिनों से तुम मुझे कुछ परेशान और उदास सी लग रही हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ यार, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तो फिर तुम क्यों परेशान हो जाती हो? मैंने कहा तो वो मेरी तरफ होके बैठ गई, तो मैं उससे ज़रा दूर हो गया। मुबश्शिर, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत अहम बात करने के लिए बुलाया है। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतनी तमहीद बाँध रही थी। "यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बात करो, बल्कि तुम हुक्म करो। क्या हुक्म है तुम्हारा? अगर तुम्हारा हुक्म हो तो मैं अपना सर भी कटवा सकता हूँ।" मैंने कहा तो वो हँसने लगी। जब वो हँसी तो उसकी आवाज़ मुझे कुछ अजीब-सी महसूस हुई, जैसे वो अंदर से कुछ सोच रही हो या फिर उसे कोई बात चुभ रही हो। "तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तुम्हारा एक टेस्ट लेना है।" जब उसने दोबारा से टेस्ट वाली बात की तो मैं मुस्कुरा दिया। हाँ भाई, लो, क्या टेस्ट है, मैं टेस्ट देने को बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो मुझे घूरी से नवाज़ने लगी। मुबश्शिर, बात ये है कि मैं शादी से पहले ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम शादी कर सकते हो या नहीं। इसके लिए तुम्हारा एक टेस्ट होगा और उसके बाद ही मैं ये फ़ैसला करूँगी कि क्या तुम काबिल हो या नहीं, मैं तुमसे शादी करूँ भी या नहीं। जब उसने ये कहा तो मेरा दिमाग फटने लगा। आखिर वो लड़की हो के ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मैं उसे कहना चाहता था कि वो क्यों ऐसी बात कर रही है, लेकिन मैं कुछ कह ही ना पाया। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो ये बात क्यों कर रही है। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी उसे देख रहा था, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुबश्शिर, बताओ, अगर तुम्हें यह मंज़ूर है तो ठीक, वरना आज से हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा तो मैं भी खड़ा हो गया। मैं ये सब नहीं चाहता था, लेकिन उसकी फरमाइश पे मैं खड़ा हो गया। आखिर को वो मेरी मंगेतर थी और अब एक अजीब सी फरमाइश कर रही थी। मैंने सोचा, देखते हैं वो करना क्या चाहती है। मेरे साथ-साथ वो भी बेंच से उठ खड़ी हुई और मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक तरफ ले जाने लगी। वैसे भी पार्क सुनसान पड़ा था। दोपहर का वक़्त था, वो मुझे एक तरफ ले आई, जहाँ पे बाथरूम की लाइन्स लगी थीं। मुझे खाली बाथरूम के अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। वो लड़की हो के ना जाने क्या करना चाह रही थी, जिससे मुझे शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन मेरी ज़ुबान पे ताले लग गए। मैं आज अपनी मोहब्बत को साबित करने लगा था, लेकिन दिल ही दिल में मैं सोच रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं उससे कहना चाहता था कि ये सब गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। आखिर वो कैसा इम्तिहान चाहती है? वो कैसा टेस्ट करना चाहती है? मैं एक मर्द था, उससे बात करता था, उससे मोहब्बत करता था, इसके अलावा उसे क्या सबूत चाहिए था? उसे दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। वह ऐसे ज़ाहिर कर रही थी कि जैसे मैंने कुछ करना हो, लेकिन मैं चुपचाप ही खड़ा था। वो मेरे करीब आई और कंधे से कंधा टिका दिया और मेरे कान में सरगोशी में बोली कि अब दिखाओ। जब उसने ये कहा तो लड़का होने के बावजूद भी मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी गलत लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं एक शरीफ घराने से था, मैं उसे भी शरीफ समझता था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि वो क्यों हर वक्त मेरा हाथ पकड़ लेती थी। ना जाने उसके साथ क्या मसला था। मुझे लग रहा था कि मैंने उससे मंगनी करके अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला किया है, मगर वो मेरी मोहब्बत थी। मेरा दिमाग फट रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर मैं उसके साथ कुछ करता तो मैं रोज़े क़यामत अपने अल्लाह रसूल को क्या मुँह दिखाता और अपने ज़मीर को क्या जवाब देता। और अगर उसके साथ ना करता तो वो कह रही थी कि वो मुझसे मंगनी ख़त्म कर देगी। उससे तो मुझे ऐसे चौराहे पे ला खड़ा किया कि जिसके आगे खाई थी और पीछे गड्ढा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब भी मेरी तरफ देख रही थी। फिर अचानक से मेरे ज़हन में ख़याल आया और मैंने सोच लिया कि मैं गलत काम बिल्कुल नहीं करूँगा।
اور اپنی زندگی کی نئی شروعات اس غلط کام سے بالکل بھی نہیں کروں گا۔ بھلے وہ مجھے چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے۔ میں محبت کو چھوڑ سکتا تھا لیکن اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ سارا، تم مجھ سے محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ تم یہ دیکھنا چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے قابل ہوں یا نہیں۔ تو میں صرف اور صرف تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس میں تمہارے قابل نہیں۔ جو تم چاہ رہی ہو وہ میں مر کے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو، تمہاری اپنی مرضی، لیکن یہ گھناؤنا کام میں نہیں کروں گا۔ جب میں بولا تو میری آواز گیلی ہو رہی تھی اور آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ مضبوط مرد ہونے کے باوجود بھی میں اس لڑکی کے لیے آنسو بہا رہا تھا جو کبھی میری محبت تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے دل سے اترتی جا رہی ہو۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دیکھ کے میں حیران رہ گیا، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا چاہ رہی ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دروازہ کھول کے ہم باہر نکل آئے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسی بینچ پہ لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ سارا، کیا ہوا؟ تم کیوں مجھ سے پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ آخر تمہارا سا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے جب گیلی آواز کے ساتھ اس سے یہ کہا تو اس نے سر اوپر کیا، پھر ایک ایسے راز سے پردہ ہٹایا جس کے بارے میں جان کے میں نے سوچا کہ یا اللہ شکر ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ صرف اور صرف میرا امتحان لینا چاہ رہی تھی کہ میں کس قسم کا لڑکا ہوں۔ اس نے کہا وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے لڑکے کو شامل کرنا چاہتی تھی جس کا کسی غیر محرم سے کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے اس نے میرا امتحان لیا، اور اگر میں اس کے ساتھ غلط کروں گا تو کل کو کسی اور کے ساتھ بھی تو کر سکتا ہوں، کیونکہ بھلے ہی ہماری منگنی ہو گئی لیکن ابھی بھی وہ میرے لیے نامحرم تھی، اس لیے میرا امتحان لینا چاہ رہی تھی کہ میں کس قسم کا لڑکا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں اور کیا ہی کر سکتی تھی؟ نہ ہی میرے سر پہ باپ کا سایہ ہے اور نہ ہی میرا کوئی بھائی ہے، اسی لیے مجھے ایک ایسے جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے۔ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے غلط بات کی، بس میں صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار پاؤں گی۔ اب ساری کہانی کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ مجھے پہلے تو اس پہ تھوڑا بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں اس کی بات سمجھ گیا۔ وہ بیچاری اکیلی لڑکی تھی، اس کی ماں کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی جو صرف اور صرف اس کا ہو۔ میں نے نم نگاہوں کے ساتھ اس سے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور میرے اس عمل سے تو اسے معلوم ہو ہی گیا کہ میں کس قسم کا لڑکا ہوں۔ پھر ہم وہاں سے آ گئے اور میں نے اسے گھر چھوڑا، میں بھی اپنے گھر آ گیا۔ ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی کی تاریخ رکھی گئی، وہ بھی سارا کی رضامندی سے۔ اس نے کہا اب وہ جلد از جلد مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کی طبیعت بھی اب ٹھیک تھی اور انہوں نے گاؤں سے اپنے ایک بھتیجے کو بھی اپنے پاس رہنے بلا لیا تھا۔ وقت بڑی جلدی گزر گیا، ہماری شادی ہو گئی۔ دن پہ دن گزرتے گئے۔ شادی ہونے کے بعد میں اسے پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اسے کہا وہ کبھی کبھی صرف میرا ہاتھ اس لیے پکڑتی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں بھی اس پہ بہک جاتا ہوں یا نہیں، لیکن میں اپنے امتحان میں کامیاب رہا تھا، اسی لیے اب ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن گئی تھی۔